When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Welcome to all of you, expecting parents who have joined this particular session. This session is all about do and don'ts in the term of pregnancy, but not limited to that particular topic. We are covering almost topics where we are going to discuss about the exercise and other stuffs. This particular program been conducted by Cord Life in association with Dr. Risha Gangawar. Just to start with, I'm just going to introduce myself and my company to you. It would take another 5 minutes. In the meantime, doctor would join and we'll start the session. Yeah, we are from Cord Life. My name is Rakesh. I'm here with the Cord Life from almost a decade. What Cord Life is all about? We are into the stem cell preservation. It only happens at a time of delivery. So this is the thing which is very much important for every expecting parents to know about. Just to start with, we deal in stem cell preservation. This is the basic of stem cells, where we talk about how stem cell functions, or we can say how stem cells basically make a part of our life. Like जैसे सीड होता है, सीड जब हम जर्मिनेट होता है तो एक प्लांट बनता है विद द टाइम, और प्लांट से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं और ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है. इन द सेम वे स्टेम सेल्स एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेम सेल बनता है, उस स्टेम सेल से ही उस 9 महीने के पीरियड में बच्चे का फॉर्मेशन होता है. तो स्टेम सेल हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ इनटू एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन. So those stem cells by which baby has been formed, that reside in umbilical cord blood, that is the medical wastage. But we in our biotechnology called that medical wastage a sanjeevani. Why is it so? Because by which baby has been formed, same sort of stem cells in a live condition reside in umbilical cord and umbilical cord blood. So rather wasting it in case of stem cell preservation, if you are opting for, we are going to collect the entire blood and the certain portion of umbilical cord. We are going to collect it and we are going to transport it to the our facility where sample is going to be processed. When we are going to process the stem cells, we are going to extract 3 different stem cells. One is hematopoietic, which extracted from cord blood, एंड जो कॉर्ड हमने कलेक्ट किया था फिजिकल पार्ट, उसमें से मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स और एपिथेलियल स्टेम सेल्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करते हैं हम. इस तरीके से हमारी बॉडी मोर और लेस 3 स्टेम सेल से ही बनी हुई है. तीनों स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो थर्ड स्टेम सेल लाइन है उसको बोलते हैं एपिथेलियल स्टेम सेल्स. दैट स्टेम सेल्स इज यूनिक टू Cord Life. वी डू हैव अ पेटेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेम सेल्स in India and many more countries. Now I'll not much of your time, but to discuss few success stories we are having with the stem cell transplantation. We are talking about the parents who went through the preservation of their baby stem cells. First example is of Rayan, where a baby has been born with the deficiency of leukemia, but their parents unfortunately didn't go for stem cell preservation at that time, but they have planned another baby, and by the preservation of that baby stem cells, they treated Rayan very well. Georgia, this is the one of the case or one of the first case of Cord Life for cerebral palsy. Most of us are aware of this disease where mental and physical retardation is there with the baby, which happens at a time of
डिलीवरी और यू कैन से अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाता है विद इन 2 or 3 ईयर। इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं, ओनली ट्रीटमेंट इज हैविंग बाय द सैंपल ऑफ द बेबी। So in this particular case, fortunately, their parents went ahead with the preservation of Georgia corn, and using that stem cells, we have treated Georgia. So this is the case of Justin. He has born with the deficiency of neuroblastoma, and using the stem cell of Justin only, we have treated very well. So this is the kind of disease which is deadly, and this is the one of the first case of cot life. We're talking about thalassemia major, baby born with the deficiency. Unfortunately, their parents didn't go for a stem cell preservation at that time. They were not aware of. Then with the consultation with the doctor, they again plan a baby, and by preserving the stem cell of that baby, उस stem cells को use करके मोइनम पाल का proper treatment किया गया way back in 2009. This is our facility in Calcutta where sample used to be preserved after processing. Now our global presence in this is all about our global presence. As we talk about COTLIFE India, we are the group of companies present in almost 10 countries in Asia Pacific. We are the oldest and largest stem cell bank network. Our headquarters is in Singapore, international headquarters in Singapore. We are internationally acclaimed and certified company. If we talk about in India, we are DCGI licensed company. There are a few accreditations which are milestones to us, like AABB, American Association of Blood Banking, or USFDA, or College of American Pathology. Such kind of accreditation certification are there in our cap as a feather. It is nothing, just to show what kind of quality and what kind of promises we made to the customers and clients. We used to fulfill those kind of thing by our own credentials. Now more than 5.5 lakh parents trusted us throughout this journey. We are the company listed in 2 different stock market worldwide. This is one of the technology which we use to process the umbilical cord blood. This is AXP2, which makes sure कि whatever cord blood, जो cord blood हम collect कर रहे हैं, उसमें से maximum number of stem cell extract हो पाए. This technology makes sure more than 97% of extraction would be there. जो भी हम cord blood को collect करेंगे, this is the only technology available in India, AXP2, which makes sure such kind of extraction, and worldwide widest used technology AXP2, which is only used by COTLIFE in India. Now about cord tissue, जो हमने बात करी थी, जो physical part of the cord होता है, mesenchymal stem cell, epithelial stem cells, जहां से हम extract करते हैं, that processed by the technology called as CellOptima. This is again the patented technology of COTLIFE, which we use here to process and extract these 2 different stem cell lines. Now I'm just ending my presentation about the company, but whatever query you would be having about the stem cell preservation, how to go about it, what are the procedure, how it is going to help you in a family, you can write a question in the box so that we can answer before ending the session. Now I guess Dr. Richa is here. Dr. Richa. Rakesh, Dr. Richa is still not in the session. Okay. Meanwhile, she is going to join us. I'm just handing over this session to Mrs. Sonali Shivlani. She is speaker here for the topic, and she is internationally certified pregnancy, lactation, and child nutrition counselor. Handing over the session to you, Mrs. Sonali Shivlani. Welcome to you. Thank you, Rakesh. That is very kind of you. Hi everybody, a very warm welcome to everyone. As Rakesh ने already मेरा introduction दिया है, मेरा नाम सोनाली है, सोनाली शिवलानी. I am from Mumbai, and I have been doing these pregnancy classes etc. for more than 17 years now. 40,000 plus families के साथ काम कर चुकी हूँ इस journey में, and overall you know pandemic के दौरान जैसे आप लोग के साथ हमको जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, तो इसमें मेरा एक स्पेशल थैंक्स टू COTLIFE, क्योंकि उनके द्वारा ये सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे हमको आपसे, आपको हमसे ये जो सेशंस हम वैसे फिजिकली कर पाते थे,
एटलीस्ट हम अभी ऑनलाइन मोड पर ये सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं. On the personal front, I have 2 kids as well. मेरे भी 2 बच्चे हैं, बट लेकिन वो बड़े हो गए, उनको मैं बच्चे नहीं बुला सकती अभी, एडल्ट्स हो गए हैं. बट नेवरदलेस उनकी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी, उनकी जो पेरेंटिंग जर्नी थी, दैट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी. एंड उन्हीं चीजों के साथ मैं अपने कॉन्वर्सेशंस या पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना पसंद करती हूँ. वेरी बिग थैंक यू टू डॉक्टर रिचा, जिन्होंने ये हमको मौका दिया टू टॉक टू ऑल हर मदर्स. सो थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. इस सेशन में हमने आपको म्यूट पे रखा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. आप बेशक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए. और अब हम और समय नहीं लेते हैं, संडे है, आप लोग हॉलीडे के दिन हमारे साथ जुड़े हैं. So let us start with sharing the session today on nutrition, exercise, and अगर आपके पास प्रेगनेंसी में कोई सवाल हो तो वो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं. Just give me 1 minute. I'm going to share my. All right. तो हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, आज का कॉन्वर्सेशन न्यूट्रिशन से, मतलब खाने पीने से. और प्रेगनेंसी में खाना पीना तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, बिकॉज अब आपका बेबी डेवलप हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी का प्रोग्रेस हो रहा है, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. एंड ऑब्वियसली आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं वो खा सकती हूँ, क्या ये खाना सही होगा मेरे लिए. तो इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी अब अगले कुछ मिनटों में कंप्लीट करेंगे. पहली बात, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बेनिफिट नॉट ओनली द बेबी but also the mother and the entire family. अब होता यह है कि जब भी हम कोई प्रेग्नेंट मदर से पूछते हैं कि why do you think you should eat healthy during pregnancy, उनका जवाब हमेशा यही होता है, it's for the good of my baby, it is for the development of my baby. But that is not the only thing. इससे प्रेगनेंसी के दौरान मदर को, डिलीवरी के बाद मदर को एंड पूरे फैमिली को भी काफी फायदा होता है. समझे कैसे? क्योंकि हम मदर इंडिया तो नहीं बनना चाहते, राइट? अभी पहली बात होती है बेबी. बेबी को क्या फायदा है? हम इसको बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. अब इसको हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं. जब बेबी कंसीव होता है, द टाइम ऑफ कंसेप्शन, आपका बेबी इतना छोटा, इतना टाइनी है, जो एक बिल्कुल आपको शायद नजर भी ना आए. इसको हम एक सिंगल सेल बोलते हैं. द टाइम ऑफ कंसेप्शन बेबी इज अ सिंगल सेल. जब बेबी की डिलीवरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं तो बेबी के शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. इतने सेल्स, मतलब जितने स्टार्स आसमान में नहीं है, उतने सेल्स का आपका एक बेबी बन जाता है. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी फिजिकल डेवलपमेंट आपके शरीर के अंदर इन द प्रेगनेंसी पीरियड हो रही है. अब एक और सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं कोई भी बिल्डिंग बना रही हूँ जिसकी मुझे नींव डालनी है, वो अगर नींव मैंने सही डाली हो, फाउंडेशन अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो वो बिल्डिंग को कोई भी आंच नहीं आएगी, चाहे कोई भी तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए. बट लेकिन अगर वो नींव ही मजबूत ना हो तो ये सारी चीजों से बिल्डिंग के टूटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. अब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आप नींव डाल रहे हो अपने बच्चे की, उससे बच्चे का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, ये सारे सही से बन जाते हैं, विच मीन्स ऑप्टिमल फिजिकल डेवलपमेंट. अब सिर्फ इससे तो हम खुश नहीं है, वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट मोर. एंड एज अ मदर मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ कि अगर मेरे बच्चे का A+ रिपोर्ट कार्ड आता है तो आई एम द हैप्पीएस्ट. आई फील कि मेरा A+ आ गया है, आई हैव अचीव्ड समथिंग. सो जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी ऑप्टिमल हो जाती है इन द वूम. अब मैं ये नहीं बोल रही कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू मेक आइंस्टाइन, दैट्स नॉट द आइडिया, बट एटलीस्ट सही से जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सही न्यूट्रिशन खाने से, सही वातावरण, एनवायरनमेंट, खुशी का वातावरण बनाने से आपके बच्चे का सही हो जाता है. अब आते हैं वजन पे. वजन के क्या महत्व है? अब आप ये सोचिए, व्हेन आप कभी अपनी मदर या मदर इन लॉ के साथ किसी भी महिला से, किसी भी लेडी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है,
अब तो खैर पैंडेमिक में नहीं गए होंगे, बट लेकिन इससे पहले अगर आपका कहीं ऐसा विजिट हुआ हो तो क्या सवाल पूछे जाते हैं? 3 चीजें आपकी मदर जरूर पूछेगी। पहला कि लड़का है या लड़की, दूसरा नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, और तीसरा व्हाट इज द वेट ऑफ द बेबी, बच्चे का वजन क्या है। ये क्यों पूछते हैं? बच्चे का वजन इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आपके मदर और मदर इन लॉ के जहन में ये एक फिक्स्ड आइटम है कि जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा बेबी का हेल्थ है, बट दैट इज नॉट ट्रू। आइडियल बर्थ वेट ये होता है जो 2.5 to 3.5 किलोस के बीच में होता है, एंड दिस इज फॉर द इंडियन पॉपुलेशन। सो ये रेंज में अगर बच्चे का वजन होता है तो वी कॉल इट द आइडियल बर्थ वेट। अगर बच्चा 3.5 किलो से ज्यादा है तो ज्यादातर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाती है, और डिलीवरी के बाद भी ओबेसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बच्चा 2.5 किलो से कम है तो वीकनेस है, एंड चाइल्डहुड के जो इलनेसेस हैं जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब ज्यादा हो जाते हैं। और तीसरा, डिलीवरी आसान नहीं होती है क्योंकि बच्चा कमजोर है, तो जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो उस समय बच्चे को तकलीफ होती है और उसका हार्ट रेट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसकी वजह से हमको डिलीवरी सर्जिकली करने की शायद जरूरत पड़ सकती है। मदर के लिए बहुत सारे फायदे हैं, और मैं एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें मैं लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, ऑप्टिमम वेट गेन। अगर मैंने सही खाना पीना खाया, अपने आप को हेल्दी रखा, तो मेरा वजन सही से बढ़ेगा। आइडियल प्रेगनेंसी वेट गेन, अगर आपका जो स्टार्टिंग वेट है नॉर्मल है तो 10 से 12 किलो के बीच में आपका वजन बढ़ना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हुए प्रेगनेंसी स्टार्ट करने के समय तो आपका वजन सिर्फ 7 से 8 किलो बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपका अंडरवेट है प्रेगनेंसी, आपने प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के पहले आप अंडरवेट रह चुके हैं, तो आपका वजन थोड़ा ज्यादा, जैसे 14 से 15 किलो भी बढ़ सकता है, तो ये नॉर्मल है। बट अगर आपका वजन गेन में प्रॉब्लम है तो पहली चीज तो आपकी प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स है वो ऊपर नीचे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक्सेस वेट के साथ हार्मोनल चेंजेस भी ज्यादा हो जाते हैं, एंड इसमें आपको आपके प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आ सकती है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन। सो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और सेफ नहीं रहती। अब डिलीवरी की बात अगर हम करते हैं तो हम सब 9 महीने की बात करते हैं, बट एक्चुअली ये 9 महीने क्या है? जो प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड है इट इज 40 वीक्स, और 37 वीक्स एंड अबव को हम फुल टर्म मानते हैं। तो अगर 37 वीक्स आप क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब आपकी डिलीवरी टाइम पे हो रही है, जल्दी नहीं हो रही। जल्दी होगी तो आपको डिफिकल्टीज आ जाएंगे, NICU वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बच्चा कमजोर रहेगा, तो उसमें फैमिली को भी काफी स्ट्रेस हो जाता है। एंड जब डिलीवरी समय पे होती है, खुद ब खुद होती है, नेचुरली होती है, तो ये जो पूरा बर्थ एक्सपीरियंस है ये आपका पॉजिटिव रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ओनली बिकॉज आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, बट आपको पेन्स थोड़े कम होंगे, आपका डिलीवरी टाइम पे होगी तो आपको बेबी को NICU में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो पूरा एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी, मदरहुड, बर्थ, ये बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको करीबन 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। आपने ये जरूर सुना होगा कि अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, अब तो तुम 2 हो, डबल हो, यू शुड ईट डबल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नॉर्मली 2 रोटियां लेते हो तो अब आपको 4 रोटियां लेनी है। दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप समझें कि 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज इन अ 24 आवर पीरियड, इसका टोटल हो जाता है 2 रोटीज, 1 कटोरी ऑफ सब्जी एंड मे बी 1 कटोरी ऑफ दही। दिस इज टोटली 300 कैलोरीज। तो आपको थोड़ी थोड़ी अपनी खुराक बढ़ानी है, नॉट सो मच, राइट? तो बिल्कुल ध्यान से, यू डोंट नीड टू ईट फॉर 2, एंड अनहेल्दी चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी। जैसे अगर आप फ्राइड फूड्स आप बहुत ज्यादा ले लेते हो तो इसमें आपके कैलोरीज तो बढ़ जाएंगे लेकिन हेल्थ और न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपकी बैलेंस्ड मील्स पे। काफी सारे लोगों को अगर हम पूछते हैं तो उनको पता है हेल्दी क्या है। शायद आपसे भी पूछूंगी, आप भी मुझे बेशक बता दोगे। अगर मैंने आपसे सवाल डाला कि रोटी सब्जी, क्या रोटी सब्जी हेल्दी है? आप बोलोगे तुरंत हाँ बिल्कुल हेल्दी है।
और अगर मैंने दूसरी तरफ सवाल डाला कि क्या चॉकलेट केक हेल्दी है, आप बोलोगे नहीं नहीं चॉकलेट केक तो हेल्दी नहीं है। तो ये जो फर्क है प्रेगनेंसी के टाइम पे और ज्यादा मायने रखता है, मतलब ये सबके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी मील्स को हम बैलेंस कैसे करें, क्योंकि हमारे सिस्टम को हर एक खुराक की जरूरत है। एवरी आइटम इज रिक्वायर्ड एंड इफ वी डोंट बैलेंस आवर मील्स आवर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर। एक सिंपल सी सवाल मेथड आपको सिखा देती हूँ। जब भी आप अपने मेन मील्स खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आप अपनी 5 उंगलियों को देख लीजिए। भी आपकी 5 उंगलियों में 5 चीजें छुपी है। हर मील में ये 5 चीजें होनी जरूरी है। अब ये क्या है, लेट अस टॉक अबाउट इट। अब पहली चीज होती है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपकी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये आपके ग्रेन्स हैं, माने कि आपकी रोटी, राइस, ब्रेड, उपमा, पोहा, इडली, डोसा। अगर आप थोड़ा मतलब वेस्टर्न स्टाइल खाना पसंद करते हैं तो ओट्स, ये सारी जो चीजें हैं इन सब चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स चूज करने से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड चूज अनरिफाइंड ग्रेन्स, मतलब जो पॉलिश ग्रेन्स हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए, जैसे कि सफेद चावल, मैदा, इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो अवॉइड करें। कौन से सीरियल्स आपको यूज करने, कौन से ग्रेन्स यूज करने हैं, आप ब्राउन राइस ले लीजिए, गेहूं, नाचनी, ओट्स, जवार, बाजरा, ऐसे सब ग्रेन्स को आपको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करने हैं। सुबह, दोपहर और रात इसमें आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आपको कवर करने हैं। दूसरी फिंगर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कैलोरीज बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए अगर भूख लगे तो पहले हम फल और सब्जियां खाते हैं। अब हम ये कैसे चुनेंगे, जनरली हमको टेंशन हो जाता है क्योंकि किसी ने बोला है हरी सब्जियां खानी चाहिए या विटामिन सी के लिए आपको ये खाना है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज दैट यू शुड चूज अ वाइड वैरायटी, मतलब जो आपका करंट सीजन में हो, जो करंट सीजनल हो, पहले तो वो चुने। जो ऑफ सीजन आइटम्स को आपको अगर मन भी हो रहा है तो उससे दूर रहिए। तो फर्स्ट थिंग इज आप सीजनल चुनेंगे। सेकेंड चीज जो आपको चुननी है, व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट इज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक डिफरेंट कलर्स। तो सेम ही चीज नहीं खानी है, क्योंकि आज भिंडी पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज भिंडी खा रहे हैं। सो वी शुड ट्राई टू चूज अ वैरायटी ऑफ द कलर्स दैट आर देयर इन द सीजन। एंड तीसरी चीज, आपको इनको फ्राई नहीं करना या इनका जूस वगैरह नहीं बनाना है। तो ये सारे जो आप चीजें हैं आप ध्यान में रखें। एक सर्विंग को हम मानते हैं एज 100 ग्राम्स। सो अगर आपको हमने कहा है कि मिनिमम आपको 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स लेनी है, तो 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स और 300 grams of vegetables, that means a total of 500 grams of fruits and vegetables आपको पर डे अकेले खुद कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात होती है जो तीसरी उंगली है, वो है आपकी प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। रिमेम्बर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपका बेबी एक सिंगल सेल है और फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कैसे बनेंगे? प्रोटीन्स से, राइट? सो प्रोटीन्स को आपको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा नंबर हम तो बता देते हैं कि 75 ग्राम्स पर डे आपको लेना है, लेकिन अगर आप तोला लेके बैठेंगे और उसमें 75 ग्राम्स ऑफ दाल या चिकन या व्हाटएवर डालने की कोशिश करेंगे तो ये गलत कैलकुलेशन है। प्रोटीन का इंटरनल कैलकुलेशन होता है जो आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं घर पे, बट लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ खाते हैं कोई ना कोई छोटे मात्रा में ही प्रोटीन की आइटम आप जरूर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो, अगर आपका ब्रेकफास्ट एग्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अगर आप पराठे बना रहे हो तो पराठे में इंस्टेड ऑफ आलू पराठा आप पनीर पराठा या दाल पराठा ऐसे कुछ बना लीजिए। तो मेक श्योर कि आपके प्रोटीन वैल्यूज हर मील में आप इंक्लूड करें। और जो मिड स्नैक्स होते हैं, जैसे सुबह के टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे व्हेन यू हैव कोकोनट वाटर,
तो उसके साथ में आप थोड़े से बादाम वगैरह ले सकते हैं। और शाम को जैसे आप स्प्राउट्स ले लीजिए, या अगर भूख लगी है तो आप अलग अलग सीड्स ले सकते हैं, जैसे पंपकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स, इनका आप मिक्स करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो ये हो जाती है आपकी चौथी उंगली, राइट। जब कैल्शियम की बात करते हैं तो ज्यादातर महिलाएं ये पूछती है, मदर्स में से ये जरूर पूछती है कि डॉक्टर ने तो कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया है, फिर मुझे कैल्शियम की क्यों जरूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका कैल्शियम का सप्लीमेंट सिर्फ 500 mg का है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 1000 to 1200 mg ऑफ कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, एंड ये बेबी के बोन और टीथ प्लस मसल और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब जब कैल्शियम बॉडी में आप लेंगे नहीं डायरेक्टली, तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम आपकी बॉडी में से पुल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी, और आगे चल के जैसे आप मेरे एज पे आ जाएंगे तो आपकी हड्डियों वगैरह में तकलीफ आएगी, और उस समय आपके जो घर में बड़े बूढ़े हैं वो यही बोलेंगे कि तुमने प्रेगनेंसी में हमारी बात नहीं सुनी थी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ है कि आपको कैल्शियम जरूर लेना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी एज वेल एज आफ्टर यू डिलीवर। तो 600 ml ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, पनीर, चीज, इन सब चीजों को आपको अपने डाइट में अराउंड 600 ml रोज इंक्लूड करना चाहिए। जनरल एक सवाल ये भी आता है कि क्या मुझे भैंस का दूध लेना चाहिए, क्या मुझे गाढ़ा दूध लेना चाहिए। आप स्किम्ड मिल्क भी आराम से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्किम्ड मिल्क लेने से आपको कोई तकलीफ होगी या कोई न्यूट्रिशन कम होगा। स्किम्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ फैट यानी कि क्रीम का फर्क है, न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी वही रहती है। अगर आप में से कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जैसे आप दूध के आइटम्स नहीं ले सकते, तो न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके जो प्लांट सोर्सेज है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्सनी, सेसमे सीड्स, इन सब चीजों को कितनी मात्रा में आपके डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है, ये आपको पूछ लेना बहुत जरूरी है। पांचवी उंगली हमारी सबकी फेवरेट, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। अब यहाँ पे तो हमने लिखा है कंज्यूम इन मॉडरेशन, लेकिन सिंपल सी बात है, आपको दिन में ओनली 6 टीस्पून्स, इससे ज्यादा आप फैट्स या ऑयल्स नहीं ले सकते। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट्स पे ज्यादा ध्यान दें, जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स है उनसे थोड़ा दूर रहें, राइट। घी वगैरह भी आपको कम मात्रा में लेना है। जनरली लोग बोलते हैं कि डिलीवरी आसान होने की वजह से आपको घी बहुत सारा लेना चाहिए, बट ये एक मिथ है, तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। घी खाने से आपकी डिलीवरी जल्दी होगी, ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे पानी। अब पानी से कोई एक्चुअली ना विटामिन ए है, बी, सी, कुछ नहीं है, आयरन, कैल्शियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपने इतना सारा खाना खाया है उसको हजम करने के लिए आपको पानी पीना बहुत ही जरूरी है। सो दिन में 10 ग्लास कम से कम, मतलब अराउंड 2 से 2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। अब डाइजेशन के अलावा जो आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, ये भी आपके वाटर कंजम्पशन की वजह से मेंटेन रहता है। नमक यानी कि सॉल्ट, अब इससे टेस्ट तो बड़ी अच्छी बनती है, बट इसमें सोडियम भी बहुत ज्यादा होता है। तो जितना आपके नॉर्मल खाने में पड़ता है उतना ही सही है, उससे ज्यादा एडिशनल सॉल्ट आपको नहीं लेना चाहिए। और एडिशनल सॉल्ट आपके डाइट में कहाँ से आता है? आपके डाइट में जो पैकेज्ड फूड्स है जैसे सॉस, या अगर आप नूडल्स वगैरह ले लेते हैं, या अचार, इन सब चीजों में सोडियम बहुत ही हाई कंटेंट में होता है और आपको इस पे परहेज रखनी चाहिए। सप्लीमेंट्स जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए, कई बार मदर्स को ये ख्याल आता है कि यार ये मुझे मन नहीं हो रहा, ऐसे नौशिया होता है, सूट नहीं होता, वॉमिटिंग हो जाती है। आप डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट आपको ना सूट करे, लेकिन नाम या ब्रांड चेंज करने से दूसरा सप्लीमेंट आपको सूट कर जाए। तो हमेशा डॉक्टर से बात जरूर करें
और फिर ही अपने सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करें, आप अवॉइड ना करें। सप्लीमेंट्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम सबको आयरन और कैल्शियम दोनों प्रिस्क्राइब किया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से। अब आयरन एंड कैल्शियम दोनों मिनरल्स हैं, तो इसीलिए आपको ये साथ में नहीं लेने। एक अगर आपने मॉर्निंग में ली है तो दूसरी आपको रात में लेनी चाहिए। कम से कम 4 to 6 आवर्स का गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये कुछ प्रेगनेंसी सुपर फूड्स हैं, ये आप अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटोज, एग्स। लेकिन एग्स आपको दिन में सिर्फ एक ही एग येलो लेना चाहिए, बाकी आप 3, 4, 5 एग वाइट्स जरूर ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड लीन मीट, ये आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएंगे। बेरीज अगर सीजन में नहीं है तो ड्राइड बेरीज भी कंज्यूम किए जा सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो है इनमें कोई शुगर या प्रिजर्वेटिव ज्यादा ना हो। होल ग्रेन्स पे ज्यादा फोकस रखें। एवोकाडोस, हाफ एन एवोकाडो एवरी डे इज वेरी वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैट्स एंड ये आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ड्राई फ्रूट, नट्स और सीड्स, ये भी आपको डेली कंज्यूम करने चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये गर्माहट देते हैं, बट ये हाई इन फैट्स होते हैं, तो उसकी लिमिटेशन होती है। यू कांट टेक लाइक जब भूख लगी तो हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, डोंट डू दैट। मेक श्योर कि दिन में आपने एक मुट्ठी भर से ज्यादा ये ड्राई फ्रूट, नट्स और सीड्स नहीं कंज्यूम किया। ये कुछ फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि रॉ मीट है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। फॉरेन की जो चीजेस है, सॉफ्ट चीजेस, इनको भी आपको अवॉइड करना है। जो रेगुलर आपके सुपरमार्केट्स में चीज मिलती है, इंडियन चीजेस, इनमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध भी अनपैस्चराइज्ड अवॉइड करना है। अगर आपके आसपास कोई तबेला है, वहां से फ्रेश मिल्क आता है, तो ये आपको पैस्चराइज करके ही लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक मिल्क विच इज अनपैस्चराइज्ड। रॉ एग्स कई बार हमारे डेजर्ट्स में भी आ जाते हैं, जैसे चॉकलेट मूस, बड़ा यमी होता है, लेकिन यू मस्ट अवॉइड रॉ एग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फुली कुक करके। इवन किसी को सनी साइड आप खाने का बहुत मन होता है, तो उसमें क्या द एग योक इज रनी, सो यू शुड नॉट हैव रॉ एग्स। फिश अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो इससे आपके मर्क्यूरी लेवल्स बढ़ सकते हैं, सो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक इज फाइन, बट मोर देन दैट यू शुड अवॉइड। कैफीन से आयरन अब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो टी, कॉफी, एरिएटेड बेवरेजेस अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। एंड फाइनली अल्कोहल और ड्रग्स के कोई भी फॉर्म आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये आपके बेबी को के ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं थ्रू योर प्लेसेंटा। ये कुछ कंट्रोवर्शियल फूड्स हैं जो हम रेगुलरली इनके बारे में सुनते हैं, जैसे पपाया और पाइनएप्पल। माना जाता है कि एक्सेस पपाया और पाइनएप्पल खाने से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, और जहां पर भी ऐसे कभी कभी थोड़ा वहम होता है, डर होता है, तो आपको उस चीज से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। बट डेट्स, जैसे कि डेट्स काले होते हैं, तो इससे बेबी का रंग काला हो जाएगा, तो ये भी आपके अंदर एक वहम भरा गया है, तो ऐसा नहीं होता है। और डेट्स क्या इनमें शुगर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो 1 से 2 डेट्स अगर आप लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोकोनट वाटर के बारे में मैंने ऐसे सुना है, और काफी मदर्स ने मुझे बताया है कि कोकोनट वाटर लेने से बच्चे के बाल बहुत आते हैं और उससे मदर को एसिडिटी होती है, या बच्चे का सर बिल्कुल नारियल की तरह हो जाएगा। ये सब मिथ्स है। और अगर आप घी की बात करते हैं तो ये टेस्ट के लिए, जैसे आपने अपनी रोटी पे लगाया या पराठे पे लगाया या बिरयानी में डाला, ये सब ठीक है, बट लेकिन आपको ये अवॉइड करने चाहिए। इतना एक्सेस में आपको नहीं लेना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सिर्फ उसको टेस्ट के लिए लें। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप एक्सेस घी लेते हैं तो आपकी डिलीवरी स्मूथ हो जाएगी, बच्चा बाहर फिसल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अब मेरा सेकंड टॉपिक शुरू होने से पहले जो हम एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बात करेंगे,
मैं देख रही हूँ कि मैम ऋचा मैम ज्वाइन हो चुकी है हमारे साथ, और मैं चाहूंगी, आई वुड रिक्वेस्ट मैम के प्लीज एड्रेस द ऑडियंस and just speak a few words and welcome everybody. Please, ma'am. Hello, Sonali. Hi, ma'am. Hi. A very warm welcome. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. A very warm welcome to all of you who have joined the webinar. It is my pleasure to have everyone with me. And yes, now I can see you, Sonali. And I think, Sonali, you can continue with the session for now. And I would be happy to take any question and answers at the end of the session. All right, ma'am. Thank you so much. Okay, sure. So there was some technical problem, so I couldn't connect in the beginning. But that's fine. We can carry on from now. No problem, ma'am. So now I'll mute myself, and you can continue. Sure. Thank you. All right. So हम वापस आ गए हैं. हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में. प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस बहुत ही महत्व रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है. पर एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने से पहले हम प्रेगनेंसी के पोस्चर के बारे में बात करते हैं. जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा टमी इंक्रीज हो रहा है. इस समय हमारे बैक में, लोअर बैक में काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. और आम जनरली वी हैव सीन कि प्रेग्नेंट मदर्स को बैक एक की बड़ी कंप्लेंट रहती है. इट्स लाइक अ मेजर इशू. लेकिन कई बार सिर्फ पोस्चर करेक्ट करने से ही आपके जो ये बैक के प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक सॉल्व हो जाते हैं. तो अगर आप ये दो पिक्चर्स देखेंगे, एक पिक्चर है जहां पर मदर जो लेफ्ट में है वो बिल्कुल स्लाउच कर रही है. उसने फुल बैक सपोर्ट, जैसे आप देखोगे उसने फुल बैक सपोर्ट नहीं लिया हुआ है. इस मदर को उसके अपर बैक से लेके लोअर बैक पर काफी प्रेशर है, और इन द लॉन्ग रन, मतलब हफ्ता 10 दिन में फॉर श्योर इसको बैक के प्रॉब्लम जरूर होंगे अगर ये पोस्चर उसने रेगुलरली कंटिन्यू किया तो. दूसरी मदर को अगर आप देखते हो तो उसका बैक बिल्कुल स्ट्रेट है. जो बैक है चेयर का या सोफा का या गाड़ी का, जहां पर भी वो बैठेगी, शी हैज टेकन फुल बैक सपोर्ट फ्रॉम द टॉप टू द pelvis. She has given full support. The other thing that you should also keep in mind is कि जो पैर है आपके वो प्रॉपरली फ्लोर पर फ्लैट होने चाहिए. अगर आप सोफा पे बैठ रहे हो और आप पालती मार के बैठ रहे हो या बेड पे बैठ रहे हो तो दैट्स ओके. पर अगर आप चेयर वगैरह पे बैठते हो तो योर फीट शुड नॉट बी डैंगलिंग. यू शुड हैव फुल सपोर्ट ऑफ योर फीट ऑन द फ्लोर ऑल्सो. अगर आपके पैर पहुंच नहीं रहे हैं, जैसे अगर आप ऑफिस चेयर पे काम करते हो एंड योर फीट आर नॉट रीचिंग द फ्लोर, then what you should do is you should keep a small stool so that you can give proper support to your feet. Standing posture भी बहुत ही important है. अब standing posture में क्या होता है, जब हम खड़े होते हैं and normally भी as normal human beings हमारे बैक में एक हल्का सा कर्व होता है. तो आपके लोअर बैक में एक हल्का सा कर्व होता है. उसके अलावा जब ये एब्डोमेन वेट आपका बढ़ता है तो यहाँ पे जो कर्व है वो और भी एग्जैजरेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है. इसके साथ साथ आपका जो चेस्ट है, ब्रेस्ट साइज है, प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज होता है. तो जैसे ही आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है आप इस तरह से हंच करना शुरू करते हो. तो ऊपर से हंच और यहाँ पे जो कर्वेचर है वो एग्जैजरेट हो जाता है. तो बैक में आपको काफी एक जैसे एस शेप बन जाता है जिससे आपको काफी दिक्कत हो सकती है. तो जब भी आप स्टैंड करते हो यू शुड ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट. अपने शोल्डर्स को पुश बैक करने, अपने स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है. इससे आपको बैक प्रॉब्लम्स बहुत बहुत कम होंगे एंड आपको प्रेगनेंसी के दौरान बैक एक वगैरह की जो कंप्लेंट रहती है वो काफी कम हो जाएगी. एक्सरसाइजेस का जो सैंपल्स या कुछ पिक्चर्स दिखाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर या पॉइंट मैं आपके साथ रेज करना चाहूंगी कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइजेस करने चाहिए. यू शुड नॉट स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस जस्ट रैंडमली लाइक दैट, राइट. तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज स्टार्ट करें. ये जो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है हर विजिट पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं है अगर 4th मंथ में डॉक्टर ने हाँ बोल दिया
तो 5th मंथ में भी आपको पूछना चाहिए, 6th मंथ में भी आपको पूछना चाहिए। हर महीने जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट पे जाते हो, आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि इज एक्सरसाइज स्टिल सेफ फॉर यू, राइट? So this is very important. This is something that you should always keep in mind, right? कई बार प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर रेकमेंड करेंगे कि आपको शायद एक्सरसाइजेस स्लो डाउन करने हैं या अवॉइड करने हैं। तो हर प्रेगनेंसी अलग होती है एंड ऐसा नहीं है कि आप एबनॉर्मल हो, बट कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा संभाल की जरूरत है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली एक्सरसाइज जो सिंपल सी आपको मैं दिखा रही हूँ वो है नेक रोटेशंस। आप जहां पर भी बैठे हो यू कैन ट्राई इट विथ मी। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो बिल्कुल स्लोली करेंगे, आप इसमें कोई रश नहीं रखेंगे, राइट? तो स्लोली ड्रॉप योर चिन टू योर चेस्ट, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, बैक ऑफ द हेड टू द बैक, राइट ईयर टू राइट शोल्डर and chin to chest. अब हम इसको रिवर्स करेंगे, right ear to right shoulder, back of the head to the back, left ear to left shoulder and chin to chest. नंबर ऑफ काउंट्स शुरू में 2-3 बारी करने हैं। जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ती है हर एक्सरसाइज के, आप अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के हिसाब से काउंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है आपके रिस्ट रोटेशंस, स्पेशली उनके लिए जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, लैपटॉप्स पे ज्यादा काम करते हैं, तो उनको हाथों वगैरह में सूजन होती है। कई बार हम सुबह उठते हैं तो हाथ में सूजन होती है क्योंकि हम रात में अपने हाथ पे इस तरह से सो गए। तो ये जो रिस्ट रोटेशंस है उससे आपके जो फिंगर्स है, हैंड्स है, उसकी सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको ये कुछ इस तरह से पहले एक डायरेक्शन में और फिर दूसरे डायरेक्शन में आपको रिस्ट रोटेशंस करना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं आपके फुट फ्लेक्सेस की। जो फुट फ्लेक्सेस हैं वो आपको इस तरह करने हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल अपने लेग्स को पॉइंट करिए और फ्लेक्स, ये आपको अपने काफ्स में फील होगा। कई बार हमको महसूस होता है कि रात में काफ्स वगैरह में बहुत पेन होता है, सडनली क्रैम्प पड़ जाता है, तो ये एक्सरसाइजेस से आपके काफ्स की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। और फिर आप अपने एंकल्स को इस तरह से अच्छे से स्लोली रोटेट करिए, फिर आप उसको रिवर्स कर दीजिए, राइट? बटरफ्लाई पोजीशन इज अ लेबर प्रिपरेशन एक्सरसाइज। तो अपने दोनों पैर आप आगे इस तरह से ले आइए, जितना आप नजदीक अपने ला सकते हैं पैरों को ले आइए, और फिर आप अपने हाथ कुछ इस तरह से अपने पैर आप कुछ इस तरह से फ्लटर कर सकते हैं। इससे आपके जो इनर थाइज है उसमें आपका स्ट्रेच इंक्रीज हो जाएगा एंड आपके जो पेल्विस है उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी बढ़ जाता है। मैं तो मानती हूँ कि ये वाली जो एक्सरसाइज है यू कैन डू इट एनी टाइम। जैसे व्हेन यू आर वाचिंग टीवी, टॉकिंग ऑन द फोन, यू शुड डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हो सकती है। बैक पेन अगर है क्योंकि एब्डोमेन में वेट इंक्रीज हो रहा है तो कैट एंड कैमल ये मैं रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज डू इट ऑन अ मैट ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। गेट ऑन टू ऑल फोर्स एंड स्लोली आप अपने बैक को इस तरह आर्च करेंगे और फिर आप इसको राउंड करेंगे एंड देन आर्च एंड राउंड, आर्च एंड राउंड, once again arch and round, right? So ये जो exercise है becomes very valuable क्योंकि आपके lower back as well as upper back को अच्छी exercise मिल जाती है। pelvic tilt भी एक back exercise है, तो ये भी आप mat पे करिए। जैसे आप लेट जाएंगे slowly आप अपने buttocks को raise करेंगे, जितना आप raise कर सकते हैं उसको raise करके hold करिए और फिर slowly release and once again raise करके hold करिए and slowly release। तो जैसे मैंने आपको बताया कि counts are completely up to you। जब आप start करते हो आप 3 से 4 counts से शुरू कर सकते हो और slowly you increase it to 8 to 10 counts। leg raises again labor preparation exercise। मैट पे आप sideways लेट रहे हैं, आपको दोनों legs के लिए अलग अलग करना है, पहले एक side फिर दूसरा side और फुल 90 डिग्रीज, मतलब फुल 90 डिग्रीज आपको अपने लेग्स को इस तरह से रेस करना है।
and this is something which is very valuable and important. 8 to 10 counts से आप शुरू कर सकते हैं, and then you can increase it to anywhere between 24 to 32 counts for each leg. स्क्वाट्स तो प्रेगनेंसी की एक बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है, और जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो हमारा बिकॉज एब्डोमिनल वेट इंक्रीज हो गया है, वी कैन हैव अ बैलेंसिंग प्रॉब्लम, तो कोई सपोर्ट लेना बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो आप कोई भी मतलब मजबूत कुर्सी, सोफा, दीवार, इसके नजदीक होकर के आप अपने स्क्वाट्स कर सकते हैं. प्रेगनेंसी में वी आर रेकमेंडिंग कि आप वाइड स्क्वाट्स करें, मतलब अपने दोनों लेग्स को आप जितना वाइड कर सकते हैं आप वाइड करके हाफ वे टिल योर थाइज आर पैरेलल टू द ग्राउंड, आपको इस तरह से स्क्वाट्स करते हैं. अगेन 8 से 10 स्क्वाट्स से आप शुरू कर सकते हैं. मेरे जो रेगुलर एक्सरसाइज क्लासेस हैं उसमें लोग करीबन 70-80 स्क्वाट्स हर सेशन में कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक्स में, मतलब आपने 2 सेट्स करे, फिर कोई और एक्सरसाइज करी, फिर 2-4 सेट्स और कर लिए, फिर कोई और एक्सरसाइज करी, तो हम इस तरह से मल्टीपल स्क्वाट्स कराते हैं मदर्स को. डीप ब्रीदिंग बिकम्स वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि इससे आपके लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. You don't have to hold your breath anywhere, but एक इतनी लंबी सांस ले लीजिए to all the way till your lower abdomen and then exhale. आपको imagine करना है कि your body is like a balloon and then it is exhale. So deep breath in and deep breath out. Preferably non-air conditioned environment, सुबह के time पे, and do about 40 to 50 deep breaths every day. Oxygen supply to your baby will be better. And also it will prepare your lungs, it will prepare your abdominal strength for the actual delivery. Kegels आपकी pelvic floor exercises हैं, जो हम आपको दिखा तो नहीं सकते, but लेकिन समझा जरूर सकते हैं. तो ये आपकी जो vaginal muscles है, आपको imagine ये करना है कि आपको टॉयलेट जाना है, but we are not letting you go to the bathroom. तो आप अपनी यूरिन कैसे होल्ड करेंगे? So it's like a hold and a release, a hold and a release. राइट, अ होल्ड एंड अ रिलीज. आपको कुछ इस तरह से एक्सरसाइजेस करने हैं, बिकॉज इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ बन जाएगी. प्रेगनेंसी के दौरान जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब आपको ऐसे लगता है कि मैं हंसी या खांसी तो मेरा थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, पेल्विक स्ट्रेंथ बनने से, पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ बनने से ये प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी. दूसरी चीज, डिलीवरी के वक्त जब बच्चा बाहर आ रहा है और उस एरिया को, आपके वेजाइना को स्ट्रेच होना है, तो वो आसानी से स्ट्रेच हो सकेगा. और डिलीवरी के बाद जो इतना स्ट्रेच हो गया वेजाइना, उसको वापस शेप में लाने के लिए भी कीगल्स की बहुत ही हेल्प हो जाती है. आई वुड रेकमेंड कि कीगल्स आपको लाइफ लॉन्ग करने चाहिए, बिकॉज इससे आपकी जो पेल्विक स्ट्रेंथ है फॉर यूट्राइन इश्यूज, फॉर ब्लैडर इश्यूज लेटर इन लाइफ, आपको प्रॉब्लम्स कम होंगे. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice. आज का ये एक स्पेशल वाउचर जो हमारे मदर्स हमारे साथ जुड़े हैं कॉर्ड लाइफ और लाइफ एंड परस्यूट्स की तरफ से, ये स्पेशल गिफ्ट वाउचर है. लाइफ एंड परस्यूट्स एक ब्रांड है जो ऑर्गेनिक और नेचुरल वेलनेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, स्पेशली फॉर मदर्स एंड बेबीज. एंड इसमें बेबी मसाज ऑयल या बॉडी वॉशेस फॉर द मदर, फॉर द बेबी, ये सारे आपको घर बैठे शॉपिंग करने का प्लस विद अ डिस्काउंट ऑप्शन मिल रहा है. ये सेशन होने के अबाउट 48 to 72 आवर्स में कॉर्ड लाइफ की टीम आपके साथ टच में रहेगी और इस सेशन की रिकॉर्डिंग प्लस ये वाउचर आपके साथ शेयर करेगी.
उस टाइम अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो बुक अ प्रेजेंटेशन. ये प्रेजेंटेशन आपके लिए फ्री है, तो आप स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में और भी डिटेल में अपने फैमिली के साथ समझ सकते हैं. ऑफ कोर्स राकेश ने ऑलरेडी हमको एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट स्टेम सेल बैंकिंग, बट यू कैन टेक अ मोर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन एट दैट टाइम. ये कुछ बुक्स हैं जो मेरे Amazon पे अवेलेबल हैं. ये आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर एक्सरसाइज, फॉर पेरेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉर रेसिपीज फॉर चिल्ड्रन जब वो खाना खाना शुरू करते हैं. वी आर नाउ गोइंग टू बी ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड ये मेरे पर्सनल कोऑर्डिनेट्स भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिए. अगर आप मेरे क्लासेस प्रोग्राम्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये मेरा वेबसाइट एड्रेस है, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स जहां पर हम काफी फन चीजें करते हैं, एंड यूट्यूब चैनल फॉर एनी प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस. कॉड लाइफ के सारे नंबर्स भी हैं स्क्रीन पे, तो उनका कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और SMS नंबर, ये सारे आप नोट कर लीजिए अपने पास, क्योंकि आपको ये कॉड लाइफ को रीच करने में बहुत ही हेल्प करेंगे. एंड आई एम गोइंग टू नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. आई एम श्योर कि आपने हमारे लिए क्वेश्चन बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डाले होंगे, सो वी विल ओपन इट अप एंड वी विल आस्क यू नो Richa ma'am also to help us answer these questions, and I'm sure Rakesh is also available. तो अगर आपके पास स्टेम सेल्स के बारे में कुछ questions हो तो ये भी आप पूछ सकते हैं. So Thank you, Sonali. yes. A very nice session by you. Lot Thank of you. information for me as well as for the patients. And if anyone has any queries, they can please put it down right now. Yes. So ma'am, एक question तो already आ गया है. I think ये आप ही answer कर लीजिए. Is mango also considered to be controversial? Should I avoid mango during pregnancy? Definitely not. Definitely not. You can take any fruit during pregnancy. Even papaya and pineapple is controversial, so we tell it better to avoid in the first trimester, but afterwards you can take it. All right. एक और question है मैम. Is COVID vaccination safe during pregnancy? See, the vaccines that are available in India, at present the government is not recommending them to be taken during pregnancy. But अगर आप deliver कर चुके हैं और आप baby को feed करा रहे हैं, then you can take it. After you deliver, you can take the vaccine. Not during pregnancy at present. Though they are being given in foreign countries, but in India as such, at present they are not recommended. Right. So इसी मदर का एक और क्वेश्चन है कि should we be taking any precautionary measures to prepare ourselves because the third wave of COVID is expected and it is supposed to have more effect on babies? See, what I feel, you should never stop taking the precautionary measures because though the number of cases are less, COVID is still there. What can be done, especially to prepare for the wave, is what you have, जो हम शुरू से बता रहे हैं, social distancing आपको maintain करना है. You have to isolate yourself, especially if you are about to deliver, from the family members who are moving out of the house, who are going for the jobs. And you have to maintain adequate hand hygiene, use sanitizer frequently, then wear a mask when you come to the doctor for a visit. But at the same time, don't miss your routine visits to the doctor, or you may do an online consultations, but don't skip any of your necessary ultrasound scans or the necessary tests, because that is equally important. Okay. और मैम व्हाट अबाउट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिकॉज क्या होता है कि मदर्स को भी डर रहता है कि व्हाट इफ आई टेस्ट कोविड पॉजिटिव, तो मेरी डिलीवरी का क्या होगा? हाँ, definitely third trimester में इसीलिए we tell the patients to be more careful, because if you turn out to be positive at the time of delivery, then first thing is you have to deliver yourself in a limited number of your options are limited. You have to go to a COVID hospital for the delivery, and it is seen that COVID negatively impacts the mother as well as the baby. For the mother, if the mother is in
active COVID. She has see, it is categorized based on the symptoms the mother is having as mild, moderate, and severe. So if she's having very severe symptoms needing oxygen support, then that can be वो बच्चे के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और प्लस इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन. So we sometimes give blood thinner injections to such patients, and that's why it is more important, because if you are not about to deliver, we have to deal with the mother only at that time. But if she is about to deliver, then I have seen patients having babies having distress because of COVID. So sometimes we need to deliver them early, or we after delivery the patient may have complications. So definitely you have to protect yourself from COVID at any cost. Best is to isolate yourself from other family members who are moving out, and let them buy fruits, vegetables, or whatever you need for you. You stay in a separate room. Okay. And during pregnancy, is it safe to take medications, etc., if I'm COVID positive? Not all medications for COVID are safe in pregnancy. Like routinely we give antibiotics. What antibiotics are given routinely, they are not given to pregnant females. You have to consult your doctor before taking any medication for COVID during pregnancy. Okay. And ma'am, अभी since COVID का ही जमाना चल रहा है, तो सारे questions COVID पे ही आ जाते हैं. Doctors वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या टेली कंसल्टेशंस आर ओके, और डू आई नीड टू कम टू द हॉस्पिटल? As I already told you, you can have teleconsultations, but see, 4 scans are very important in pregnancy. One is your NT-NB scan, that is for Down syndrome screening, which is done between 11 to 13 weeks. You should not miss the scan. At that time, I feel you should visit your doctor and get this scan done. Then the second is a TIFA scan if you are between 18 to 20 weeks of your pregnancy, and the third is the growth scan, that is somewhere between 30 to 32 weeks. These 3 scans are must, and the first is a pregnancy confirmation, or the scan to confirm the cardiac activity, that is done once you are pregnant around 6 to 7 weeks. So these 4 scans you should not miss. Rest of the time, if the doctor is comfortable and you are comfortable, you can go for an online consultation for minor complaints. You need not visit the doctor every time. Understood. All right. There is one more question from a mother, that she has high level of amniotic fluid. So what is the reason for that, and what is the care that she should be taking? See, the reason, how many weeks pregnant is she? Has she written? No, she has not mentioned. She has not written. The most common cause for increased amount of amniotic fluid is diabetes. So she should get herself tested for diabetes. Then sometimes it may be due to some problems in the baby. So she should get a TIFA. If not done, then she should get a TIFA scan done. And still in some patients, the increased amount of amniotic fluid may be just what we call as idiopathic. There is no reason behind it. So for such patients, just a monitoring is needed. But the most important thing is diabetes, and she should get it checked. So she has mentioned that now she has sent a message. She is 27 weeks pregnant. So 27 weeks, I think diabetes TIFA must have been done, and any problem with the baby must have been ruled out, any congenital malformation or anything like that. So she should get herself tested for diabetes. Right. A 75 grams oral glucose tolerance test needs to be done. Yeah, so glucose tolerance test is something that she should get done. Okay, wonderful. So I think I have next question is coming for Rakesh. Rakesh, can you keep yourself on unmute also? Yes, ma'am. Yeah. So first question is there, that can stem cell transplant be used in thalassemia? Can I have the question once again? Yes. Can stem cell treatment be used for thalassemia? Yes, cord blood stem cell is one of the available source for the treatment for thalassemia. Or as of now, thousands of treatment being done in India and outside of India for thalassemia major.
for using cord blood stem cells only. So it is very much recommended to preserve stem cells of your baby to get the treatment down on such kind of disorders. And so Rakesh, is it that stem cells can be only used for the baby, or can it be used for others also? Look, we usually preserve stem cells whenever any parents ask us ki whether we should go ahead with the preservation of baby for baby's sake only. We always tell them ki that stem cells not only for the baby but for the entire family. Reason behind it, there is a proper genetic matching required called as HLA matching to get the treatment done. This is the eligibility criteria, and that happens within the family. If you go ahead with the preservation of baby, as far as our company is concerned, over an agreement, we used to take care of family up to grandparents. Like baby, siblings of baby, parents of baby, and grandparents of baby. If they require the stem cells, we are committed to provide them with stem cells. But up to parents, matching would be very easy. Okay. So for grandparents, the matching might be a little bit more difficult, but it can be used. There is a possibility. Yes, we are still committed to provide them an alternate sample if there would not be a match. So that is the best we can have for the family of patient. All right, lovely. So next question that comes from that, and that is actually coming in my mind, that जो ये आप लोग जो blood निकालते हो, is it enough for one transplant, multiple transplants? मतलब अगर मैंने use किया, मेरे भाई ने use किया, मेरे mother ने use किया, is that okay? Like there are two things. One is cord blood, one is cord tissue. When we talk about specifically cord blood, the cord blood cannot be multiplied right now. Just for the development, I am sharing here. Cord Life recently just conducted a research, sponsored a research over cord blood expansion, where expansion of cord blood can be done in future. It's a trial phase 1 being done successfully. We spend multiple millions of rupees for this particular thing just to make sure that whatever we are preserving in future, it can be multiplied up to an extent. As of now, it cannot be multiplied, but we make sure that whatever you are preserving, most of the stem cells can be harvested from the cord blood. As I mentioned over PPT, there is a technology called as EXP2, which makes sure that maximum extraction of cord blood would be there, which is going to help patient for a healthy transplant, which would be sufficient enough, which is required dose I'm talking about. But if there would be cases where a dose is not very much sufficient, as we cannot predict the blood which we can extract, तो उस केस में we make sure कि जो हमने blood collect किया है उसके अलावा एक unit of stem cells हम उसमें add on कर सकें to make a sufficient amount for a transplant. And again, within the agreement, we commit in future if there would be a commercial expansion available, so we are going to give to the patients free of cost. Okay, so आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हो तो इसके expenses भी बहुत ही high होंगे, तो ये आपके पास कोई payment plans है कि is it a one time payment only? Look, we do have multiple plans depending upon the need of the patients, but as far as structure of payment is concerned, we are very much flexible. We do have a flexibility of 12-month EMI, 6-month EMI, 24-month EMI, or one-time payment. Anybody can pay that particular thing in 2,000 something rupees of installment for 24 month also. Right. And what about ये तो हो गया booking का और storage का, but अगर भगवान न करे use करना पड़े transplant के expenses, aren't they also very high? Yes, it is very high, almost 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, sometimes below than that, sometimes above than that. Can be such kind of expenses can be bear by the patient, but just to make sure our own customers who are going ahead with the preservation, if they require the stem cells, so we make sure whatever expenses would be there for a transplant, up to 25 lakh rupees for cord blood and 20 lakh rupees for cord tissue, in an insurance by AIA for cord blood and a financial assistance by Cord Life for cord tissue. We used to cover it for the family up to parents. We are not including grandparents here, but baby, siblings and parents, if they required it, so 45 lakh rupees of financial assistance or a medical insurance is available for them to avail without any cost. So मतलब basically therapy है वो इंडिया में भी available है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए?
Look, most of the transplants are available in India, but sometimes people used to prefer outside of India to go ahead with the transplant or something. But they are having their own choices. We are not limited to give a services in India or in certain countries. In all over the world, you can go ahead for a transplant, or expenses would be bear anywhere you are going for a transplant. And जो sample है वो आप transport भी कर देंगे to any location that the Yes, patient. worldwide transportation is free of cost for the family. And ये कब book करना चाहिए राकेश? अगर मैं pregnant हूँ. Ideally, तो within 3 months of pregnancy or after 3 months of pregnancy, it should be booked. But you can do it anywhere you want, any time you want at a time of pregnancy term. But I would suggest before 8 months, you should go ahead with the formalities done at any cost. Okay, all right. Lovely. आपने बहुत क्वेश्चन आंसर किए. Thank you so much. एक और क्वेश्चन आया डॉक्टर मैम के लिए. डॉक्टर रिचा, one of the mothers is asking कि I have a maternal fibroid. It is around 7 centimeters. Can I go for physiotherapy? Physiotherapy? What kind of physiotherapy? I think she means, can I do pregnancy exercises? Okay. I think means that. Again, for how many weeks is she into her pregnancy, and the size of the fibroid, whether she is having any pains or not. See, if there is fibroid, you may have a risk of having preterm labor. That is, your labor pains may start before your due date. So it depends on the size of your fibroid, the location of your fibroid, whether it is intramural, subserosal. So based on that, I can recommend whether you are fit to do exercises or you need bed rest. But definitely you can always do breathing exercises, neck rotations, wrist rotations that Sonali told about. But for the back and squats, these you must avoid, especially if your fibroid is intramural, it is big in size, or if you are having pains already because of the fibroid. Because that may precipitate. You can start exercises around 36 weeks of pregnancy if you want a normal delivery, but before that, I think you should avoid. Right. And I think best is के reports के साथ आपको डॉक्टर से personally बात कर लेनी चाहिए, because full information के साथ any doctor will be able to give you the right advice. Right. So if there are, I think we have finished all the questions for Richa ma'am, for Rakesh also. If there is any 1 or 2 last questions, you can please post, audience. Otherwise, we will call it a wrap. We will thank you very much for joining us on this Sunday evening, a precious Sunday evening. I hope कि we have been able to give you a lot of valuable inputs आपकी pregnancy के लिए. हमने बहुत सारे doubts आपके clear किए होंगे, and you have enjoyed the session. And हमारे साथ जुड़ने के लिए very big thank you Dr. Richa for giving us this opportunity and your time on Sunday to answer all the questions. Thank you Cord Life, thank you Rakesh. इतना patiently Thank you very much, ma'am. Yeah, stem cells के बारे में भी आपने questions answer किए. So thank you very much. Okay, thank you Sonali. Risha ma'am, thank you very much. I just need the opportunity to talk to you, ma'am. Okay, Beside Rakesh. Okay, thank you Ma'am, Rakesh. just to add, ma'am. Yeah, just to add, ma'am, there are people who would not be aware about your profile. I just want to share your profile with them. Okay. Like Dr. Richa Gangwar, who is here to address on this topic and the. So for those who don't know me, I am a senior consultant obs and gynae in Sahara Hospital, and I have been in this field for more than 15 years. That's it. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Short and crisp. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath?
is it? Just a feeling. Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.